Everything I do it for you. Listen to my heart. You see what you mean to me. Such a heart, such a soul. Never want you search no more. Come on, welcome back to the episode of English once again, and we are going to study some more important rules of English grammar. Hope you are enjoying these sessions. Keep working hard, keep learning these episodes carefully so that you can learn the episodes, so you can learn English grammar very nicely. I want you to prepare very nicely so that you don't make any mistakes in the competitive examination or board examination, whichever are approaching. You can also speak English in the same way. You can also do wonderful things just like Gukesh. Hope you heard the name of Gukesh, although I mentioned it in the previous episodes. Gukesh, the youngest chess champion from India. आप भी उसकी तरह बन सकते हैं. You can also be same like Gukesh, who is the youngest world chess champion. 18 years of age. उसने कर दिखाया. चाइना के डीलिंग को उसने बीट किया चेस चैंपियनशिप में. Previous youngest chess champion was Magnus Carlsen of 22 years of age. तो उसने कर दिखाया कि यंग भी कमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत, डटे रहो. दिल तो जिद्दी है, दिल तो जिद्दी है, जिद्दी है, दिल तो जिद्दी है. ये अप्रोच रखनी होगी, जिद्दी दिल बनाना होगा. तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड. मोर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. कम ऑन. तो आज का पहला है, जैसे सेंटेंस अगर कुछ इस तरीके से दिया हो जहां पर वर्ब की मिस्टेक्स होती हैं. बर्न द कैंडल. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस दिया हो. सेंटेंस इज गिवन, बर्न द कैंडल. नो, व्हाट इज द एरर हियर? द एरर इज बर्न. यू नो व्हाई द एरर इज बर्न? बिकॉज बर्न का मतलब होता है जला देना टोटली. ठीक है, समथिंग विच इज बर्न gets destroyed, like we burn the coal, like we burn the waste. Okay, and but candle को क्या कहते हैं? Candle illumination के लिए यूज की जाती है. Candle is used for illumination. Illumination means lightning. Yes, there lies the word. So हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे light the candle. ठीक है, light the candle, lighten the candle. We'll be writing lighten the candle. ठीक, we will not be using burn the candle. नहीं यूज करेंगे हम. burn नहीं होता है. ठीक है, कैंडल को इल्यूमिनेट करने के लिए लाइटन यूज किया जाता है. समझ में आया? नाउ सेकेंड है, तो होप यू नो दिस रूल इज क्लियर. ये इसी केस में यूज होता है. ठीक है, नाउ सेकेंड रूल क्या है कि अगर डिसीज का नेम दिया हो, डाई, तो ऑफ डिसीज. जैसे मिस्टेक क्या आती है? व्हाट इज द एरर जनरली कम? शी डाइड फ्रॉम डेंगी लास्ट ईयर. तो शी डाइड फ्रॉम डेंगी. हिंदी में आप बात कर रहे हैं तो आप डेंगू बोल लीजिए, कोई बात नहीं, झकास. बट अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो से इट डेंगी, नॉट डेंगू. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेंगी, राइट? सो शी डाइड फ्रॉम डेंगू लास्ट ईयर. नाउ व्हाट इज द एरर? द एरर लाइज हियर. फ्रॉम नहीं होता है जब डिसीज का नेम दिया होगा. ठीक है, any reason is given, then we can use from. But when name of the disease is given, then we are supposed to use of. She died of dengue last year. dengue last year. ठीक है, she died of dengue last year. Now इसी तरीके से एक और सेंटेंस देख ले, है ना? My brother died of cancer.
ठीक है, तो कैंसर इज द नेम ऑफ अ डिसीज, सो वी आर यूजिंग ऑफ, वी आर नॉट सपोज टू यूज फ्रॉम. एंड डाई फ्रॉम अ कॉज, तो कोई रीजन दिया हुआ है, कॉज दिया हुआ है, एनी रीजन और कॉज इज गिवन, देन वी आर सपोज टू यूज फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, Ramesh died from long illness. ठीक है, रमेश died from long illness, लंबी बीमारी से उसका निधन हो गया. किसी एक्सीडेंट में आ जाए तो die in an accident. अगर एक्सीडेंट की बात आ जाए तो die in an accident. The child from this city died in an accident. ठीक है, died in an accident. तो the child from the city died in an accident. So these are the different things which you have to be careful about. When die is followed by the name of a disease, then of has to be used. Okay, when any reason is given, then from is to be used. When we are talking about the accident, then in is to be used. You have to be careful about these rules. आपको इन rules के लिए careful होना है कि die के केस में इस तरीके से हम prepositions का use करते हैं. Die of a disease, name of a disease, die from any reason, और किसी चीज के दौरान मृत्यु हुई, सो डाइड इन एन एक्सीडेंट. ठीक है, और अगर जैसे लिखा हो कि उपचार के समय मर गया तो डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तब ड्यूरिंग आ जाएगा. जैसे अगर दिया हो द पेशेंट डाइड, होता नहीं है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो उपचार के दौरान मर गया कोई व्यक्ति तो ड्यूरिंग लगेगा. उपचार के दौरान, when the treatment was going on and the patient or a person died, then we are supposed to use during. ठीक है, तब इन ट्रीटमेंट नहीं लिखेंगे, हम फ्रॉम ट्रीटमेंट लिखेंगे. ठीक, क्योंकि उसका मतलब फिर बदल जाएगा. फ्रॉम ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से मर गया, ट्रीटमेंट में मर गया, नहीं, डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, व्हेन द ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, जब उपचार चल रहा था. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. Yet, although it is a idiomatic phrase also. Now see this sentence. A burning man always dreads fire. अब the man is not burning. man नहीं burn कर रहा है, burning man नहीं है. वो एक हिंदी वाली कहावत नहीं है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. तो वही ये इंग्लिश वर्जन है उसका कि अ बर्निंग मैन, जलता हुआ व्यक्ति नहीं, क्या होगा, अ बर्न्ड मैन ऑलवेज ड्रेड्स फायर. जला हुआ, जलता हुआ नहीं, जला हुआ व्यक्ति वो आग से डरता है, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. ठीक है, दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट हिंदी इडियोमैटिक फ्रेज. होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द एरर. अ बर्न्ड मैन, जल चुका है, बर्निंग का मतलब जल रहा है, सो द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन वुड बी रॉन्ग, तो वो गलत हो जाएगा. ये दिस इज द एरर. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं सेंटेंस एरर या वर्ब की भी एरर है. ठीक, नाउ अब सेकेंड सेंटेंस कुछ इस तरीके, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत माइन्यूट होते हैं. जनरली स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पिक अप द एरर्स हियर. ठीक है, जनरली इनमें गलतियां ढूंढ नहीं पाते हैं. That's why I brought you after lots of
reading of the different exercises, I have picked out a certain sentences just for you. ठीक है? Remember the song which I sung? Everything I do it for you. Now a sentence is something like this. A dead man cried for help. Now what is the error? एक मरा हुआ आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था, या मदद के लिए एक मरे हुए आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई. तो जब मरा हुआ है तो कैसे मदद के लिए गुहार लगाई? बताइए. When a man is already dead, how can he cry for help? So this is where you have to use your intelligence. Verb की error है a dead man. अब यहाँ पर क्या होगा? A dying man. मरता हुआ व्यक्ति मदद की गुहार लगाई. एक मरते हुए व्यक्ति ने मदद की गुहार लगाई. So a man who was about to die cried for help. समझ आया साहब? Have you understood? ये होगा. A dying man cried for help, not a dead man cried for help. So ये minute errors हैं. These are some minute errors which can make you go dizzy, which can फंसाएंगे ये आपके सेंटेंसेस को गलत कर देंगे. ग्रामेटिकली यू वुड गो रॉन्ग एंड देन यू वुड लूज मार्क्स. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देम. पहला रूल क्या था? बर्न द कैंडल. तो कैंडल बर्न नहीं की जाती है, लाइटन की जाती है, जलाई जाती है. ठीक है. इल्यूमिनेट की जाती है, इल्यूमिनेट द कैंडल लिख सकते हैं. देन डिसीज के केस में क्या रूल था? इन द केस ऑफ डिसीज we are supposed to write off. when there is a reason we are supposed to write from. उपचार के दौरान, during treatment and accident में तो in. ठीक है. फिर burning man जलता हुआ व्यक्ति नहीं होगा, जला हुआ व्यक्ति होगा. और मरा हुआ व्यक्ति कभी भी मदद नहीं मांग सकता. so dying man, मरता हुआ, मरने की कगार पर जो व्यक्ति था उसने मदद की गुहार लगाई. So these are certain rules which are extremely important. I have specially categorized, I have specially found them out for you. Hope you have enjoyed this session. Keep coming back for some more important sessions till the board examination. These episodes will keep continue and will bring you the latest and all those different difficult and different kinds of sentences and rules which are very very necessary to understand so that you don't make mistakes in the English section of any competitive examination or if you are going to take English exam in future. या आप English exam कोई भी देने जा रहे हैं. Hope you enjoyed. Thanks for watching. Do like, subscribe and share. अगर आप benefit हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करिए, बेनिफिट करिए मुझे भी किसी तरह से in some way by subscribing and sharing. Thank you very much for watching. Bye.